Hello students, in last video I explained you types of economic activity and today topic is characteristics or feature of business. Student, first feature of business is an economic activity यानी कि business is an economic activity. Business is considered as an economic activity because it is undertaken with the objectives with the main aim of earning money. So it is called एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. स्टूडेंट, बिजनेस जो है वो फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग मनी के पर्पज़ से उसको स्टार्ट किया जाता है, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है. एंड द मेन एम ऑफ बिजनेस इज़ अर्निंग प्रॉफिट. सो बिजनेस इज़ कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Second point is production or procurement of goods and services. Students, business includes all the activities concerned with the production or procurement. Procurement means purchase of goods and services for resale. स्टूडेंट्स, बिजनेस जो है उसमें सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो आपका कनेक्टेड टू आपका प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल ऑफ दोज आपका गुड्स. Services include transportation, banking, insurance, etc. These are the comes in the आपका services. Goods में consist of consumable items. Goods का मतलब है कि जो consumable items होते हैं. बेटा स्टूडेंट्स, गुड्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक आपका इंडस्ट्रियल गुड्स. तो कंज्यूमर जिन गुड्स को यूज़ करता है, डेट गुड्स आर नोन एज कंज्यूमेबल गुड्स. Now, third point is sale or exchange of goods and services. There should be sale or exchange of goods and services in the business between the seller and the buyer. Students, in business, the exchange of goods and services must be exist between the seller and buyer. The seller sell the goods to the consumers and consumers purchase the goods from the buyer. Then exchange of goods and services take place between the buyer and seller. Next is dealing in goods and services at a regular basis. Student, this feature is a very important and because in these points the main meaning of business is includes यानी कि main things is business is includes. There should be regularity of dealings or exchange of goods and services. In this point, he want to point out that dealings and exchange of goods and services should be at a regular basis. If the exchange of goods and services is not done at a regular basis, then that activities is not count in आपका business activities. So one single transactions of sale or purchase does not constitute in business. यानी कि सिर्फ एक या टू टाइम्स परचेजिंग और सेलिंग करना ये बिजनेस में काउंट नहीं होता, बिजनेस के अंतर्गत नहीं आता. So at a regular base, exchange of goods and services is must. Yeah, it is the features of business. Next point is profit earning. The main purpose of business is to earn profit. The main motto to establish the business is earn profit. A business can't survive without making profit, without earning profit. If the businessman or business unable to earn a sufficient profit, to earn a sufficient amount of profit, then he can't survive for a longer time in a market nowadays, because nowadays the market is a lot of competitive. So if a businessman want to exist in the market, then it is necessary to earn the profit. Next point is uncertainty of return. Every business invests money with the hope of earning profit. Students,
कोई भी बिजनेसमैन है जो बिजनेस में मनी को इन्वेस्ट करता है वो सिर्फ इसी हॉप से, इसी आशा से करता है कि वो इस पैसे को लगाकर प्रॉफिट अर्न करेगा, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न मे वरी। लेकिन जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है वो एवरी बिजनेस टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू आपका नेचर ऑफ बिजनेस एंड टाइप ऑफ बिजनेस, दैट इज डिफरेंट। ऑल्सो देर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, बिकॉज it is not certain in the business कि you have earned profit every day, because there is a unique feature of business कि element of risk या risk, because this element, the element of risk is present always in the आपका business, but some awareness of businessmen, some कह लीजिए कि बेटा taking the precautions by the आपका businessman, a businessman can avoid from the आपका losses. So in business there is a uncertainty of return the आपका investment, return the आपका fund, जो पैसा लगाया उसको रिटर्निंग करने की भी एक अनसर्टेनिटी होती है, because it's not a predict कि in future what will be happening, ठीक है, ये कोई नहीं जान सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। सो देयर इज आपका अनसर्टेनिटी इन द आपका रिटर्न ऑफ फंड्स इन द आपका बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी some elements of risk because future is uncertain. Students, in every business there is a risk is present because future is uncertain and business has no control over the several factors, over the external factors like strikes by the workers, fire in the premises of the business, thefts, anything by the robbers, and change in consumer taste, etc. Because businessmen have no control over these elements, बिजनेसमैन के एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। सो इट्स आपका अनसर्टेन थिंग्स, एंड ड्यू टू दीज अनसर्टेन थिंग्स ए बिजनेसमैन हैव बेयर द लॉस इन सम टाइम्स। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। नाउ सेकेंड फीचर्स इसी में है बेटा कि बिजनेस इज एन, नेक्स्ट वाली टॉपिक है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Now we can discuss कि how a business is an economic activity. Business is an economic activity because of the following reasons. First reason is profit motive. As you know students, the main motive of every business is to earn money. Every business activity इसका जो main motive है वो earning money है in the form of profit. किसके form में? Profit के form में। And any activity which result in earning of money and creation of wealth is considered as an economic activity. क्योंकि बेटा by the business a businessman create the आपका wealth, creation of wealth for his family, for his livelihood, ठीक है। so it is known as economic activity. Second is generation of utilities, creation of utilities. Business activities result in creation of utilities. Generally, businessmen create three types of utilities. First type is form utility. As you know, the meaning of form, shape, change the shape of anything. This is known as form. तो in business यानी कि form utility means to change of raw materials into a finished product. As you know, students, in business some goods are produced and that goods are produced by the आपका raw materials and raw materials change into आपका finished goods. Clear? A businessman converts raw materials into finished goods and makes them useful for the आपका consumer और human beings. जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस है वो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश गुड्स में यानी कि इनटू कंज्यूमेबल गुड्स में, एंड सो दैट गुड्स विल बी यूजफुल फॉर द आपका ह्यूमन बीइंग. तो दिस इज फॉर्म यूटिलिटी. सेकेंड इज टाइम यूटिलिटी. गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड immediately. Student, as you know कि when the goods are produced at that time the
whole goods are not consumed by the आपका consumers. When they are produced, generally there is a time gap between the production and consumptions of goods and services. So there is a time gap between production and consumptions of goods and services. Some goods are produced in आपका पर्टिकुलर सीजन, ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितना गैप होता है, बट कंज्यूम्ड थ्रू आउट द आपका ईयर। स्टूडेंट्स, सम गुड जो है वो ओनली एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो यूज़ है उनका वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उसका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक आपका वीट हो गया, वीट प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर सीजन में, राइस प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर सीजन में, पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, बट द यूजेज ऑफ दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड आर रेगुलर बेसिस थ्रू आउट द आपका ईयर। ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर। सेकेंड एलिमेंट है बेटा इसका कि कुछ गुड्स थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस होता रहता है, बट द डिमांड क्रिएट इन द मार्केट इन ए पर्टिकुलर सीजन। लेकिन जो डिमांड है उस गुड्स की मार्केट में वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एसी है, कूलर है, या आपका बेटा वुलन क्लोथ्स है, एक्सेट्रा, ये सब पूरे साल प्रोड्यूस होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ओनली विंटर सीजन में ही आके इनका प्रोडक्शन होता है, नो, इन सब थिंग्स का प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है, बट डिमांड जो क्रिएट होती है मार्केट में वो ओनली पर्टिकुलर सीजन, डैट इज़ विंटर में, वुलन क्लोथ्स की विंटर में, एसी और कूलर की आपका बेटा समर में। क्लियर हो गया? तो बिजनेसमैन स्टोर द गुड्स इन वेयर हाउसेस। अब क्या होता है कि जो आपका बिजनेस मैन है, मान लो एक पर्टिकुलर सीजन में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको पूरे साल डिमांड मीट करने के लिए, पूरे साल डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करे, तो अपना स्टॉक मेंटेन करके रखेगा, है ना, अपने गुड्स को वेयर हाउसेज में स्टॉक करेगा एंड सप्लाई देम, ठीक है, व्हेन एवर कस्टमर्स डिमांड, और वो तब सप्लाई करेगा जब कस्टमर मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा। बाय स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउस द बिजनेसमैन हेल्प्स इन रिमूविंग द टाइम गैप। तो टाइम गैपिंग जो आपका रिमूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग एंड क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, और टाइम यूटिलिटी क्रिएट्स करता है, यानी कि आपको उस टाइम उस गुड्स को अवेलेबल कराता है व्हेन यू हैव नीड, व्हेन यू हैव आपका रिक्वायरमेंट। थर्ड इज प्लेस यूटिलिटी। गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द आपका सेम प्लेस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जिस प्लेस पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है उसी प्लेस पर वो ऑल या होल गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड। सपोज दिल्ली में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या टोटल गुड्स दिल्ली में प्रोड्यूस होगा, मतलब कंजप्शंस होगा? नो, वेयर देयर आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस बट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। उस गुड्स को एक प्लेस पर प्रोड्यूस करके कंट्री के डिफरेंट कॉर्नर तक उसको पहुंचाया जाता है। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शंस, यानी कि द बिजनेसमैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस, द बिजनेसमैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस टू मूव द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, यानी कि फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेसेस टू आपका कंजप्शंस प्लेसेस। इट्स क्लियर? द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एम एट द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। जो मेन एम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ फॉर अर्निंग मनी, कि यूटिलिटीज़ को क्रिएट करके अर्निंग मनी करना है, ठीक है, मनी को अर्न करना है। इन द सेम वे बिजनेसमैन आल्सो क्रिएट यूटिलिटीज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो सेम वे बिजनेसमैन जो है उन यूटिलिटीज़ को क्रिएट करके प्रॉफिट अर्निंग करने के पर्पज यूटिलिटीज़ को क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एम एट अर्निंग मनी बाय एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका जो मेन एम है अर्निंग मनी है। कैसे? थ्रू द आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को और सर्विसेज को एक्सचेंज करके। सिमिलरली बिजनेस एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सेम वे में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनका भी मेन एक रिजल्ट है कि वो सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं एंड अर्न प्रॉफिट। सो बिजनेस इज नो कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट्स क्लियर?